Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jitendra Padi, student. Today I am going to explain further example involving physical and chemical change simultaneously. It means these are those examples in which physical and chemical change occurs simultaneously. Both the changes appears at the same time. So that first example is zinc hydroxide exists in solid state. Upon heating, it gives zinc oxide solid plus H2O in the form of steam or gas. And next one, further zinc oxide solid upon heating gives zinc oxide solid. In this example, first of all, zinc hydroxide breaks up in two different compounds, that is zinc oxide and water. So this one is a chemical change. Okay. Now zinc oxide solid upon further heating to give zinc oxide solid again. Here initial zinc oxide before heating, that is cold and white. Upon heating, this converts into hot and yellow in color. In this reaction, zinc oxide exists in both different colors. So this one is a physical change due to physical appearance of the compound are different. Yes. Next example is potassium nitrate, that is KNO3, exists in solid state. Upon heating, it gives potassium nitrate liquid. So solid state convert into liquid state. This one is a physical change. Yes. So this one is a physical change. Now, further, potassium nitrate, which is exists in liquid state, upon further heating, it decomposes into potassium nitrite, that is KNO2. This one is also existing liquid and evolution of oxygen gas. So this one is a chemical change. When a compound convert into two different products, so this one is a chemical change, and in physical appearance change, this one is a physical change. So these two examples which involve both physical and chemical changes simultaneously. Yes, student. The next topic is the chemical reaction. When one or more substance undergo a chemical change with the absorption or evolution. Absorption and evolution is any one of them, either absorption or evolution of energy to form product. One or more product is called a chemical reaction. Means during a chemical reaction, a substance undergo
the energy in different product. This is known as chemical reaction. Yes, student. Now, next topic is types of reactor. Next topic is types of reaction. There are following types of reaction. Number one is the direct combination reaction. First one is the direct combination reaction, and next one is the chemical decomposition reaction. This is the chemical decomposition reaction. Now, first one is the direct combination, second one is the chemical decomposition, and third one is the chemical displacement reaction. The chemical displacement reaction, and fourth one is the chemical double displacement reaction. Chemical double displacement reaction. Chemical double displacement reaction. And now, fifth one is the catalytic reaction. Catalytic reaction. And sixth one is the reversible reaction. And next one is the thermal dissociation reaction. Seventh one is the thermal dissociation reaction. And last one is the oxidation and reduction reaction. So there are 8 types of reaction. First one is the direct combination, chemical decomposition reaction, chemical displacement reaction, chemical double displacement reaction, catalytic reaction, reversible reaction, thermal dissociation reaction, and oxidation and reduction reaction. Student, this is all about today. Okay? In further class, I am explaining these type of reaction with suitable example. That's all. Okay. Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Myself Rachit Vedi, maths teacher. Students, in my previous class, I discussed about the simple interest and compound
the difference between the simple interest and compound interest. Now, today we will continue this chapter, compound interest. Now, students, firstly, some important points. The first is, if when the interest is compounded annually, and in this case principal will be changed, means increases at end of every year. Okay, and when the interest is compounded half yearly, the principal increases every 6 months. Okay, remember 2 points. When the interest is compounded annually, the principal increases every 1 year, and when the interest is compounded half yearly, the principal increases every 6 months for CI. Okay, now for SI, if the SI on certain sum at the certain fixed interest rate is same every year. Okay, and SI and CI are same for the first year on the same sum at the same rate of interest. Okay, only for the first year, SI and CI are the same only for the first year for the certain sum of money and same rate of interest. Now let's see the one example. Students, let's see the question. Find the amount and the compound interest on 10,000 rupees at 8% per annum and in 1 year. Interest being compounded half yearly. Okay. In this question, student, because interest is compounded half yearly, then we calculate the compound interest for 2 times in 1 year. For first 6 months, and now second last 6 months. Okay, now for first half year, here the principal is 10,000 rupees, rate of interest is 8%, and time is 6 months, means half year. Okay, then I is equals to PRT upon 100, 10,000 into 8 into 1/2 upon 100. Okay, means 400 rupees. Okay, students, when interest is 400, means amount is A is equals to T plus I, and 10,000 plus I is 400. Okay, now students, for the next half year, for second half year, the principal, the amount of the first half year becomes the principal of the next half year, means the principal is 10,400 rupees. Rate of interest 8%, time half year. Okay, time is half year. Then interest is equals to 10,408 into 1.5 upon 100. Okay. This is 416 rupees. Now students, amount is equals to principal plus interest. Principal is 10,400, 146. Then amount is 6810 rupees. Okay, rupees. Now this is amount. The question is find the amount and the compound interest.
as we know that compound interest is CI is amount minus original principal. Original principal. Okay, amount is minus original principal is 10,000 rupees, means 816 rupees. Okay, 816 rupees. The next question is, calculate the CI occurs on 16,000 in 3 years when the rate of interest for successive years are 3 years. Students, here the difference is for the 3 years rate of interest for all years are different. First year 10%, second year 12% and third year 15%. Okay, now we know that for the first year, let's see the solution. For the first year, the principal is 1600 rupees, time 1 year, and rate of interest for the first year is 10%. Then I is equals to PRT upon 100. Okay, means I is equals to P 16,000 R is 10, 1 upon 100, means I is equals to 1600 rupees. Okay, for the end of first year. Now students, amount at the end of first year is principal plus I. Principal is 16,000 and I is 1600. Then amount is 17,600 rupees. This amount become principal for the second year. Now for the second year, principal is 17,600 rupees and rate of interest is 12%. Okay, I is equals to PRT upon 100, R is 12, time is 1 into 100, means 176 into 12. Okay, now friends, when we multiply it, we get 2112 rupees. Okay, interest for the second year. Then amount is equals to principal 176 plus 12. Then amount is 112,817, 7,800, 7,000. 19,712 rupees. Students, this is the amount at the end of second year. It becomes principal for the third year. Okay. Now for the third year, principal is 19,712. Rate of interest is 15%. Then time I is equals to upon 1. Okay. Now students, solve it. We get rupees. Okay, and amount at the end of third
original principal. CI is final amount minus original principal. Then CI is original principal. Final amount is and original principal is 16,000 rupees. Okay, when we subtract it, we get 0.80 rupees. Okay. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 9th SSC सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हम इस वीडियो में साखी नामक शीर्षक पढ़ेंगे जो आपकी हिंदी विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के पद्य भाग से में संकलित है या पद्य भाग से लिया गया है। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको पद्य भाग के अंतर्गत कबीर दास का जीवन परिचय पढ़ाया था। साथ ही मैंने जीवन परिचय लिखने के लिए भी आपको दिया था। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और प्रमेली। साखी, साखी शीर्षक है। साखी जो है वो साक्षी, साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। ये बात आप याद रखेंगे। साखी का क्या, साखी किससे बना हुआ है? साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साखी शीर्षक जो है वो दोहा छंद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? दोहा छंद। कौन सा छंद है बच्चों? दोहा छंद। साखी किस में लिखा गया है? दोहा छंद में लिखा गया है। साखी जो है वो दोहा छंदों में लिखी गई है। अब हम आते हैं साखी के पहले दोहे पर। आप सभी को मालूम कि कबीर जो थे वो संत कवि थे। उन्होंने ज्ञान को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान किसके द्वारा दिया जाता है? गुरु के द्वारा। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद का यहाँ अर्थ होगा भगवान, और पाए का अर्थ होता है बच्चों पैर। बलिहारी का मतलब होता है प्रेम, श्रद्धा, भक्ति से निछावर होना। कबीर दास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, मेरे समक्ष मेरे गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं। काके लागू पाए, मैं असमंजस में हूं कि सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूं, अर्थात किसके चरणों का स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, मैं सबसे पहले अपना जो है श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से युक्त, जो बलिहारी माने होता है निछावर होना, मैं श्रद्धा और भक्ति से अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिन्होंने जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा मुझे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया। फिर से इस दोहे की व्याख्या जो है बच्चों मैं कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको कोई इनमें से एक पंक्ति दे दी जाएगी और उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जब तक हम व्याख्या को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु और ईश्वर दोनों मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। मैं असमंजस में हूं कि काके लागू पाऊं, मैं सबसे पहले किसके चरणों का स्पर्श करूं।
बलिहारी गुरु आपनु जिन गोविंद दियो बताए। मैं अपने गुरु पर प्रेम श्रद्धा और भक्ति से, बलिहारी मतलब निछावर जाता हूं, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा मेरी अज्ञानता को नष्ट कर जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा मुझे ज्ञान देकर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया, जिससे मैं ईश्वर को प्राप्त कर सका। बच्चों आ गया। इसके शब्दार्थ में आप गोविंद का अर्थ याद रखेंगे। गोविंद का क्या अर्थ होगा? गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है भगवान। ये शब्दार्थ है बच्चों। ठीक, फिर इसके बाद होता है पाए। पाए का अर्थ होता है पैर, और बलिहारी आता है। बलिहारी का होता है निछावर होना। बलिहारी का होगा न्योछावर, न्योछावर होना। बच्चों अब हम आते हैं दूसरे दोहे पर। कबीरदास जी कहते हैं, दोहा है इस प्रकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं माने होता अहंकार, हरि माने भगवान। कि जब मेरे अंदर अज्ञानता के कारण अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाय, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। अब मुझे, मेरे पास ईश्वर है, मैं नाय, अब मेरे अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, साकरी का मतलब होता है तंग। प्रेम रूपी जो गली है वो अत्यंत तंग है। तंग मतलब सकरी है। तामे दो न समाए, उसमें दो एक साथ नहीं रह सकते। या तो व्यक्ति के हृदय में अहंकार रहेगा या ईश्वर का ही वास होगा। बच्चों इस दोहे की व्याख्या को फिर से एक बार पढ़ लें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे अंदर का, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर का जो अहंकार है वो समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, तामे द्वय न समाए। प्रेम की गली अत्यंत तंग है, जिसमें दो अर्थात अहंकार और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। आ गया बच्चों समझ में? बच्चों इसका भी शब्दार्थ देखें। मैं माने होता है बच्चों, यहां मैं का अर्थ होगा अहंकार, और हरि का अर्थ आप जानते ही भगवान। सांकरी, सांकरी का अर्थ होगा तंग। अब आते हैं बच्चों हम तीसरे दोहे पर। इस दोहे में कबीर ने खंडन रीति को क्या किया है, अपनाया है, और धार्मिक जो कर्म कांड होते हैं उनकी यहाँ पर क्या की है, आलोचना की है। देखते हैं। कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इस दोहे में कबीरदास जी ने मुसलमानों पर करारा प्रहार किया है। क्या कहते हैं? कांकर, कांकर माने होता है कंकड़, पाथर माने पत्थर, जोरी माने जोड़कर, मस्जिद लई बनाए, उन्होंने मस्जिद का क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, उस पर चढ़कर मुल्ला जो है जोर जोर से क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्या बहरा हुआ खुदा, क्या तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। फिर से देखो इसकी व्याख्या देखो। कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए।
कबीरदास जी कहते हैं कि हे मुसलमान भाइयों, तुमने कंकर और पत्थरों को जोड़कर मस्जिद को बना लिया। ताचड़ी मुल्ला बाग ने, उसके ऊपर तुम्हारा मुल्ला जो है चढ़कर जोर जोर से अल्लाहू अकबर चिल्लाता है। क्या तुम्हारा खुदा या अल्लाह बहरा हो गया है, जिसे पुकारने के लिए तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है सच्ची भक्ति करने का उपदेश दिया है कि ईश्वर को यदि सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दिखावा मात्र करने से कुछ भी नहीं होता। बच्चों, अगर हम इस दोहे के शब्दार्थ को देखें, शब्दों का अर्थ, तो कांकर, कांकर, कांकर माने होता है कंकड़, और पाथर, पाथर माने होता है पत्थर, और जोरी माने होता है जोड़कर, जोरी माने जोड़कर। बाग माने चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। बांग माने जोर से चिल्लाना। बच्चों, ये जो शब्दार्थ मैंने इस तरफ लिखे हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ओके, इसको क्या करेंगे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। शब्दार्थ क्या है, गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या लिखेंगे, ये शब्द है, ये क्या है बच्चों, शब्द, और ये क्या है, अर्थ। शब्द में आप क्या लिखोगे, गोविंद, और इसका अर्थ होता है भगवान। पाय, पाय का अर्थ होता है पैर। बलिहारी, बलिहारी का अर्थ होता है निछावर होना। मैं का अर्थ होता है अहंकार। सांकरी का अर्थ होता है तंग। कांकर का अर्थ होता है कंकड़। पाथर का पत्थर। जोरी का जोड़कर। बांग माने होता है जोर से चिल्लाना। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह तीनों जो मैंने दोहा छंद पढ़ाए हैं, इनकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं साखी शीर्षक को जो है जारी रखूंगी और इसके अंतर्गत जो दोहे आए हैं उनको पढ़ाऊंगी। आज आपका जो गृह कार्य है, होमवर्क है, वो है यह है कि आपको इन तीनों दोहों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करना आता है ना आपको, तो आपको इन तीनों दोहों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। Good morning students. In our today's lecture, we will continue the numerical problems which we left behind. So let's start with the numerical problem number first. And the problem number first is that the driver of a train traveling at 40 meter second inverse, 40 meter second inverse, applies the brake brakes as the train enters a station
as the train enters a station, the train slows down. The train slows down at the rate of 2 meters second square, 2 meters second minus 2. The platform is 400 meter. The platform is 400 meter long. 400 meter long. Will the train stop in time? क्वेश्चन आपका ये है, will the train stop in time? Will the train stop in time? स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, वो क्या है, जैसा कि आपको पता है प्लेटफॉर्म आप सभी लोग जानते हैं ट्रेन का क्या होता है। उस प्लेटफॉर्म की लेंथ देखिए आपको कितनी दे रखी है, 400 मीटर। ठीक है, ट्रेन आपको पता है ट्रेन कहाँ पर स्टॉप होती है, ट्रेन कहाँ पर हॉल्ट लेती है, खड़ी होती है, प्लेटफॉर्म पे। जब वो आती है तो प्लेटफॉर्म पे उसको क्या करना होता है, ड्राइवर को प्लेटफॉर्म पे उसको स्टॉप करना होता है ताकि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सिंपली, देखिए ड्राइवर ने जो यहाँ पर ब्रेक अप्लाई की, वो कब अप्लाई की, जब वो स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन ने क्या किया, एंटर किया, मतलब जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म में एंटर किया तुरंत उसने क्या अप्लाई करी, ब्रेक, ताकि ट्रेन का जो फ्रंट है, जो इंजन है, वो फाइनली 400 मीटर की डिस्टेंस पे जाके क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो हमें इस पूरे प्रॉब्लम में चेक करना है कि ट्रेन ने क्या प्लेटफॉर्म के बाहर तो नहीं चली गई, क्या ट्रेन उसके थोड़ा सा इधर उधर तो नहीं हो गई। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें वो डिस्टेंस निकालनी है कि ब्रेक लगने के बाद ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और फाइनली वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, वो डिस्टेंस कवर निकाली, और अगर वो डिस्टेंस जो कवर करी है ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई होने के बाद, अगर वो डिस्टेंस आपकी 400 मीटर आती है, इट मीन्स ट्रेन हैज स्टॉप्ड इन द प्लेटफॉर्म। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन समझ गए हैं। सो आंसर इज हियर, द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए ट्रेन इस स्पीड से क्या थी, ट्रेवल कर रही थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो u इक्वल टू क्या हो गया आपका, 40 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये आपका u हो गया। ठीक है, उसने ब्रेक अप्लाई करी, तो ब्रेक अप्लाई करने का फाइनली मतलब क्या है कि ट्रेन को क्या होना है, स्टॉप होना है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेन की क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की क्या होगी, 0, ट्रेन को स्टॉप होना है। उसके बाद ट्रेन की स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, इट मींस रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन आपको कितना गिवन है, 2, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव, -2 मीटर सेकेंड -2, तो ये वैल्यू मैंने ले ली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द टाइम, तो टाइम हम लोग निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल टू u प्लस 80। एज आई टोल्ड यू, हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन को मेंशन करते हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो नेगेटिव साइन लेते हैं, और ये उठाकर वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो v की वैल्यू क्या है आपकी, 0, u आपका कितना है, 40, ये प्लस है, a की वैल्यू माइनस है, ब्रैकेट लगा के पुट किया -2, t आपको फाइंड करना है, तो t यहाँ पे हमने लिख दिया। चलिए यहाँ से t निकाल लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 इक्वल टू 40 माइनस 2t। ठीक है, इस 2t को आप इस साइड ले आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2t इक्वल टू 40। 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 40। यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आपका आ जाएगा 20, और टाइम है तो क्या आ जाएगा, सेकेंड, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 20 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस क्या करी, ट्रेवल करी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, x इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू हमें पता है 40 है, 40 पुट कर दीजिए यहाँ पर। टाइम हम लोग निकाल दीजिए, कितना टाइम लिया है ट्रेन ने, 20 सेकेंड स्टॉप होने में, प्लस हाफ, a की वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव पुट करेंगे -2,
और t की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 20, तो 20 का क्या होना है, स्क्वायर होना है, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, तो आई एम राइटिंग इट एज 400। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 40 into 20 800 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या 400। 800 माइनस 400 डिस्टेंस कितना आ गया 400 मीटर। सो व्हाट यू सी, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर स्टूडेंट्स, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करी 400 मीटर, और आपको पता प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कितनी थी 400 मीटर। इट मींस ट्रेन हैज स्टॉप्ड आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस एंड इट डजंट मूव फर्दर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के आगे वो नहीं गई, वो प्लेटफॉर्म पर एग्जैक्टली पूरा क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो आंसर इसका क्या होगा, विद द ट्रेन स्टॉप इन टाइम, यस। तो आंसर विल बी यस। So I think you got this problem. So move with another second problem. So I am roughing it. Yes. Our second problem is a car moves with a uniform velocity of 72 kilometer r inverse for 15 seconds on a national highway NH over a straight road What is the acceleration? क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है acceleration फाइंड करना है। एंड सेकेंड पार्ट इसका है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, सॉरी कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेकेंड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज अवर सेकेंड प्रॉब्लम फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन, देखिए फिजिक्स में मैथ की तरह नहीं है कि आपने सोचा कि फॉर्मूला आपको हर चीज का आना चाहिए और आपने सॉल्व कर लिया। दिस इज नॉट द मैथ, ये मैथ से भी टफ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले कंसेप्ट समझना है, क्या क्वेश्चन गिवन है उसको कंसेप्ट से रिलेट करना है, देन आपको फाइनली टूल की रिक्वायरमेंट होगी। टूल यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला। तो वही चीज है ना कि जैसे आपको वॉर में जाना है, लड़ाई करना है, और आपको क्या किया गया, सोल्ड तलवार दे दी गई और कह दिया गया जाइए, और आपको तलवार चलानी नहीं आती है, तो आप क्या होंगे, इधर उधर लगाएंगे, बाई चांस लग गया तो लग गया। तो वही चीज यहाँ पर भी है, आपको यहाँ पर पहले तो कंसेप्ट आना चाहिए, देन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, अ कार मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक्सेलरेशन आपका जीरो आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो हम लोग पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, डेल्टा v ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कितने टाइम सेकंड की बात हो रही है, 15 सेकंड की बात हो रही है। तो 15 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, 72 ही होगी, ठीक है। तो 72 और पहले भी 72, बीच में भी 72 कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई स्टूडेंट, जीरो। डेल्टा भी आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू जीरो, टाइम कितना है 15, जीरो बाई न्यूमेरिकल वैल्यू, आंसर क्या होगा, जीरो। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया जीरो, यूनिट ट्रैवल मीटर सेकंड माइनस 2। सो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल। अब यहाँ पर आप डिस्टेंस ट्रैवल के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे आप यहाँ पर
क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो आप इसमें डायरेक्टली क्या लगाएंगे, उससे भी आ जाएगा वैसे, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। आप इसमें सिंपल ये लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया था कि जो छोटी क्लास में, जूनियर क्लासेस में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये किसके लिए था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। तो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर, तो डायरेक्टली यू कैन पुट दिस फॉर्मूला एंड गॉट द आंसर। ओके, सो लेट्स पुट दिस फॉर्मूला हियर, s इक्वल टू, s आपको गिवन है यहाँ पर, सॉरी s आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालना है। s कितनी गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पर s आपको दिया 72। देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, ये आपका सेकंड में, तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए SI सिस्टम में। तो मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर पर आवर, ये बिगर वैल्यू है, इससे स्मॉलर वैल्यू बनाना है। तो स्मॉलर वैल्यू क्या होती है, 5/18 होती है। तो 1 किलोमीटर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कितना है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 5/18, सॉल्व कर लीजिए, 18 4 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई। यहाँ पुट कर दिए 20 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है 15 है, तो 15 टू जा कितना हो गया 30। तो ये आपका आ गया 300 मीटर। देखिए ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस यहाँ पे आ गई 300 मीटर। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को आप लोग उससे भी सॉल्व कर सकते थे, मैं उससे भी दिखा देता हूँ सॉल्व करके। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से बात रही है, सेम है। ठीक है, s इक्वल टू क्या था आपका फॉर्मूला, s इक्वल टू आपका फॉर्मूला था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका। यहाँ पर आपका क्या है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या था, 0 था, तो ये टर्म तो आपका यहाँ से वैनिश हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज a इज इन मल्टीप्लिकेशन एंड बोथ द टर्म वुड बिकम 0। इसको तो हटा ही दीजिए। स्पीड आपकी कितनी आएगी 20 सिंपली। ये देखिए ये बचा क्या आपका, जो रिमेनिंग टर्म लेफ्ट है ये वही आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सेम वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर बच रहा है, बाकी टर्म क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो 20 और टाइम आपका कितना था यहाँ पर 15, तो 15 पुट करेंगे, फिर आपका आ जाएगा 300 मीटर। So either you apply that simple formula which you have studied in the junior classes for uniform velocity case, uniform motion case, और यहाँ पर आप ये इस तरीके का फॉर्मूला ये भी अप्लाई यहाँ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। चलिए, now we will move with our problem number 3 for today's lecture. क्या है हमारी प्रॉब्लम नंबर 3? A motorcycle has a velocity of 10 meter second inverse. It accelerates at a rate of 0.8 meter second minus 2 for 15 seconds. Find the final velocity. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइंड करनी है आपको फाइनल वेलोसिटी। सेकंड इसमें आपको फाइंड करना है, सेकंड पार्ट ये इसमें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम, फाइनल प्रॉब्लम फॉर टुडेस लेक्चर। देखिए वेलोसिटी हैज अ वेलोसिटी, देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर सेकंड इनवर्स। इट एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ, एक्सेलरेट की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे a = 0.8 मीटर सेकंड माइनस 2।
टाइम कितना गिवन है आपको? टाइम गिवन है यहाँ पर 15 सेकेंड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो आपको वही 3 इक्वेशन लगानी है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v निकालना है आपको, तो v इक्वल क्या होता है आपका u प्लस at। ये कौन सी इक्वेशन? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो u की वैल्यू पुट करिए 10 प्लस a की वैल्यू क्या है 0.8 है, और t की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 15 है, 15 पुट कर दीजिए। ये आपका आ गया 10 प्लस 15 8 का आपका क्या होता है 15 8 आपका 120, तो 120 1 के बाद पॉइंट 12 आ गया, 10 प्लस 12 आपका हो गया 22 मीटर सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, ओके। तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया, v की वैल्यू आ गई आपकी 22 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाइए सेकेंड इक्वेशन। u की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? u है आपका 10 पुट करिए। टाइम कितना गिवन है आपको 15 पुट करिए प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना गिवन है आपको? एक्सेलरेशन गिवन है 0.8, तो 0.8 यहाँ पर, और टाइम हम लोगों को कितना गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 225। देखिए ये सब स्क्वायर अगर आपको 20 एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर आपको लर्न होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, सो दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्विकली, ओके। तो जिनको नहीं लर्न है, अच्छा टाइम है, उन्हें घर पर बैठकर ही लर्न कर लेनी चाहिए। तो ये कैंसिल हो गया आपका स्टूडेंट, तो ये आपका आ गया 0.4। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा 150 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 4 का 100 20 4 2 का 8 है 9, और 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है 90 आ गया, 90 इसमें ऐड हो जाएगा 90, ये आ गया आपका 240 मीटर। दिस इज 240 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। So student, I think you have studied these three problems for this lecture and you got my point. So we will meet in the next lecture and discuss some more problems, and finally we finish this chapter motion by the video lecture. So thanking you. Meet in the next lecture, students. Hello students, I am Ekit Dwivedi and welcome to Shivaji Group of Institutions. Today's topic is practice material subject verb agreement. Students, till yesterday you taught several rules related to subject verb agreement. Today we will discuss the practice material to fill in the blanks from the bracket correct form of the verb. So be ready and try to understand well. Students, first sentence. One of the pupils in our class dash dash a car in bracket given owns. Okay, students, one of I have taught you rule. If one of is used as subject, then there is always singular verb. So here it will be owns. Owns, this is present indefinite tense. If subject is singular number, third person, there is yes or es added to the verb. That's why owns. Here we will fill owns. That means मेरा एक शिष्य कार रखता है. Okay, so now fill owns. This is present indefinite tense. Okay, now second sentence. The lions of the east. The lions of the east. Students, this is subject of sentence and this is the name of a book. Okay, this is the name of book, and you have been taught one rule that the name of the books, if subject is name of the book, it is singular and verb
Now, apple pie and custard. Apple pie and custard. That's my favorite dish. Okay, students. Apple pie and custard. It is name of one dish. Complete dish like bread and butter, rice and curry. They are not different subject, but they are a name of complete one diet, one dish. This is the name of one dish. That's why we will supply here singular verb that means is. Okay. Now second, 10 kilometers. That's a long way to walk. 10 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी है तय करने को. ओके, तो if students kilometers, mile, 100, 1000, there is definite number before dozen, pair, kilometer, 100. I have taught you rule. There is definite number like 10, 4, 20. There is always singular verb. हमेशा इसके साथ singular verb आती है. That's why we will fill here is. Okay. Now fifth number sentence. Mohan as well as Sohan. Students, here Mohan and Sohan are two singular subjects and they are connected by using the conjunction as well as. Students, there is one rule. If two singular subjects are connected by as well as, together with, along with, then there is always singular verb. यानी यदि दो सब्जेक्ट like Mohan and Sohan they are singular as well as together with से connect है तो इनके साथ हमेशा singular verb का ही प्रयोग करेंगे. Therefore we will write here was. Mohan as well as Sohan was guilty. Okay. Now second, 6 number sentence. Neither Zan nor you dash present. Neither and nor. This is conjunction. Okay. Neither nor means nato. Zan singular. This is third person and you that is second person. Students, एक rule बताया गया है. If two subjects are joined by using neither nor either are, then verb comes according to the subject nearby. और nearby subject यहाँ पर क्या है? You. और you is considered to be plural. You को plural subject मानते हैं. That's why verb will be used according to you and according to you we will write verb. Okay, verb that is plural. Now see sentence number 7. Either Shobha or I. Same rule, students. The rule that is used in this sentence. Either Shobha or I. Here Shobha and I, two subjects. Shobha third person singular number and I first person are connected by either are. That's why verb will come according to nearby subject and nearby subject here is I and according to I we will use am. Okay, so neither Shobha, either Shobha or I am. Okay, or I am to blame. यानी या तो शोभा या मैं दोषी हूं. नेक्स्ट सेंटेंस. आइदर नाइदर आर देम डैश डैश रन. स्टूडेंट्स, इफ नाइदर आइदर आर यूज्ड एज सब्जेक्ट देयर इज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब. यू हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस रूल. हियर नाइदर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट. That's why singular verb will come. Neither of them was
Now students, sentence number 9. The council has chosen its president. Council, this is collective noun. Name of collective noun, council समिति. Chosen its president. Council ने अपना president choose किया है. This is present perfect tense. Okay, and the council here is used as collective and singular noun. That's why we will use here has. Okay, if council refer to member, that means people, different people. Okay, then we can use plural verb, that means have. But here council refers to a single body. That's why helping verb has will come here. Okay, right here has. Council has chosen its president. Now second, that means sentence number 2 and 2. Students, here 2 and 2. This is a singular subject and connected by and. Verb will come singular. That means makes. दो और दो चार होते हैं या चार होता है. In various cases, it has been seen that make or makes both verbs are used, but better to use makes. यानी better to take it as singular. Two and two. These are two subject and singular connected by and. Therefore, singular verbs should be used. It is common, but sometimes we use plural verb, that is make also. Now next, the cost of all these articles risen. Means क्या हुआ? इन सभी articles की cost बढ़ गई है. This is present perfect tense. Okay, the cost. Here subject is cost. तो here verb will be used according to cost, not these are articles. Verb will be used according to the cost, and this is singular material noun. That's why we will use here has. The cost of these articles has risen. Now next, all the students in our college, all the students in our college, हमारे विद्यार्थी में सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इंग्लिश लर्न करते हैं, सीखते हैं. ओके, हियर वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड दैट इज प्लूरल. ऑल रेफर टू स्टूडेंट्स, दैट इज काउंटेबल नाउन. यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू दिस रूल. देयरफॉर सब्जेक्ट all the students and according to this plural verb will come. Learn. Okay, all the students in our college learn English. हमारे विद्यालय में सभी विद्यार्थी अंग्रेजी सीखते हैं. Now 13 number, the quality of the memos. Students, here subject is quality. The quality. Okay, not memos. Here the subject is quality, that is singular and it is abstract noun. Then verb will be used according to quality, not according to mangoes. And this is plural, that's why we will use here was. The quality of mangoes was not good. आम की क्वालिटी अच्छी नहीं थी. Next है each of these minerals. Each of these minerals. Students, here subject is each, not minerals. Therefore, verb will be used according to each, not according to mineral. And each is singular. That's why we will use singular verb, that is is. Okay? Each of these minerals is found in India. इनमें से प्रत्येक मिनरल भारत में पाया जाता है. Now 15 number sentence, no news. Students, I have also
news. News is singular. Therefore, with news we use singular verb. That's why we will use is. Okay? No news is good news. कोई भी news good news नहीं होता है. Students, thank you for attending today's classes. You have to note down all the practice material in your fair notebook in good hand writing. Okay, bye. Thank you. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Children, now I will explain chapter 2 Geographic Grid, Latitude and Longitudes. In my previous video, I have told you about the geographic grid. Geographic grid क्या होती है इसके बारे में मैं previous video में आपको क्लियर कर चुकी हूँ. और इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको लैटिट्यूड्स के बारे में भी क्लियर किया था कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट. दीज आर द लैटिट्यूड्स. एंड द लॉन्जिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग थ्रू नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ. ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है ये मैंने लॉन्जिट्यूड्स दिखाए हैं जिन्हें मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी. टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्जिट्यूड्स के बारे में है. जिस तरीके से मैंने लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ लाइंस आपको बताई थी, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बताए थे, वैसे ही आज मैं आपको कुछ लॉन्जिट्यूड्स के बारे में बताऊँगी. द फर्स्ट थिंग इज जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो टोटल 360 लाइन्स होते हैं लैटिट्यूड्स में. इस डायग्राम से हम समझेंगे ये जो हमारी मेन एक लाइन जा रही है ये वाली इमेजिनरी लाइन, इट इज प्राइम मेरिडियन, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. ठीक है. और मैंने जैसा बताया कि 360 होती हैं. तो जो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट साइड में ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इसमें डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये साइड हमारा हो गया वेस्ट साइड. तो यहाँ से फ्रॉम मेरिडियन से ग्लोब के लास्ट तक जो यहाँ से यहाँ तक है उसमें हमारी 180 लॉन्जिट्यूड्स होती है. इज इट क्लियर? और जब हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में आते हैं तब भी हमारी यहाँ पर 180 लॉन्जिट्यूड्स होती है. ठीक है. तो 180 इज इक्वल टू 360. तो इस तरीके से एक ग्लोब पर 360 लॉन्जिट्यूड्स हमें दिखती है. ये जो मैंने लिखा है 360 लाइन्स जो है वो हमें दिखाई देती है. द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जैसे हमने लैटिट्यूड्स में पढ़ा था कि जब हम लैटिट्यूड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लाइक दैट, जैसे कि ये इक्वेटर हो जाता है तो दे आर द पोल्स. तो ऊपर का जो साइड है दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो नीचे का साइड होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है. इसी तरीके से ही अब हम इसको रब करेंगे. अब हम इसमें अगर इस तरह से कर देते हैं जो कि प्राइम मेरिडियन है, एक लॉन्जिट्यूड है, तो इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है हमारा ग्लोब जो है या हमारी अर्थ जो है. और वो किस किस में होता है, उसमें ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है. जिस तरह लैटिट्यूड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, लाइक दैट लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं वो ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं. तो दैट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लॉन्जिट्यूड्स. एंड नाउ द प्राइम मेरिडियन. अब देखिए प्राइम मेरिडियन जो होता है इज डिफाइंड एज अ 0 डिग्री फुल सर्कल नोन एज ग्रेट सर्कल. अब जो हमारा ग्रेट सर्कल होता है, जैसे हमारा जो लैटिट्यूड्स था उसमें हमारा ग्रेट सर्कल था इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर जो है उसकी जो सर्कमफ्रेंसेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है. ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा ये प्राइम मेरिडियन है बीच का, आप जस्ट इमेजिन कि ये प्राइम मेरिडियन ऐसे करके दिख रहा है और लाइक दैट ऐसे ही पीछे भी है, तो ये हमारा ये पूरा सर्कल बन जाता है.
तो ये एक हमारा ग्रेट सर्कल हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और इसे हम 0 डिग्री से डिफाइन करते हैं। जिस तरह से लैटिट्यूड्स भी हम लोग 1 डिग्री के अकॉर्डिंग इंटरवल पे चलते हैं, वैसे ही हमारे मेरिडियंस भी 1 डिग्री के इंटरवल्स पर होते हैं। ये भी आगे मैं और क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो हमारा सबसे ग्रेट सर्कल है और सबसे बड़ा लॉन्जिट्यूड है, जिसकी सर्कमफ्रेंसेस और सारे सर्कल से ज्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज द फुल सर्कल, एंड द थर्ड इज टोटल 360। और हाँ, इन्हें हम जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स भी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग 1 इंटरवल विल बी। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इसमें जो मेन समझने वाली बात है, अगर आप लोगों को ये क्लियर हो जाता है तो आपको लॉन्जिट्यूड्स में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज है कि आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एक लॉन्जिट्यूड से दूसरी लॉन्जिट्यूड के बीच में जो ये डिफरेंस है वो हमारा 1 डिग्री है। जैसे हमने लैटिट्यूड्स में बताया था कि हम उसको डिग्री से मार्क करते हैं, ऐसे ही लैटिट्यूड्स करते हैं, वैसे ही हम लॉन्जिट्यूड्स को भी डिग्री से मार्क करते हैं। एक लॉन्जिट्यूड से दूसरी लॉन्जिट्यूड के बीच का जो पोर्शन होता है ये हमारा 1 डिग्री से काउंट होता है। 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारी डिग्रीज बढ़ती हैं, और यहां से यहां तक में 180 डिग्री तक हमारे जो है लॉन्जिट्यूड्स की हमें लाइंस दिखाई देती हैं। और ऐसे ही इधर की तरफ हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो यहां से भी 180, तभी हमारा 180, 180, 360 होता है। अब जो मैंने ये लाइन यहाँ पर लिखी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 179 डिग्री, वो इसलिए इसको भी समझने की जरूरत है कि जैसे हमारा ये तो हमारी 0 डिग्री हो गई मेरिडियन, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है। जो हमारा ये फर्स्ट लॉन्जिट्यूड है वो हमारा 1 डिग्री है। अब जो हम 1 डिग्री और इधर की तरफ अगर हम इसी को देखेंगे तो यहाँ से हमारा 179 उल्टा चलने लगेगा, क्योंकि 180 है, तो 1 डिग्री और 179 ये हमारी पैरेलल चलते हैं। इधर से जो 1 डिग्री होगा वो इधर 179 होगा, इधर जो 2 डिग्री होगा वो 178 होगा। इस तरह से इधर की तरफ इंक्रीज होता जाएगा और इधर की तरफ ये चीज डिक्रीज होती जाएगी। एट लास्ट जब इधर 60 हो जाएगा तो उधर 120 मेरिडियन हम काउंट करेंगे। तो ये हो गई ये वाली। एंड नाउ द सम ऑफ द टोटल। और एक चीज ध्यान देने की बात है, जो सम होगा इन लाइंस का, जैसे कि 1 + 179 180, 2 + 178 180, 3 + 177 180। तो इन दोनों लाइंस का जो भी जो है वो प्लस आएगा, जो भी एडिशन हम करेंगे वो हमारा हमेशा 180 ही आएगा। एंड द नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर 1 किलोमीटर। अब जो मेन समझने की चीज है वो ये है, जैसे कि हमने कहा कि एक और ये दो, इन दोनों इक्वेटर्स, इन दोनों जो है लॉन्जिट्यूड्स के बीच में हम 1 डिग्री को मार्क करते हैं। क्लियर हो गया? अब 1 डिग्री आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हम टाइम को भी निकालते हैं और किस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। एंड नाउ गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। टुडे my topic is geographic grid, latitudes and longitudes, and the topic is longitudes and time. Previous videos में latitudes के बारे में, longitudes के बारे में, geographic grid के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम बताएंगे, जैसे कि हमने latitudes में आपको बताया था कि किस तरह से latitudes जो होती हैं हेल्प करती हैं टू लोकेट प्लेसेस। मैंने आपको दिल्ली और मुंबई के एग्जाम्पल के साथ में इसको क्लियर किया था कि किस तरीके से 90 डिग्री नॉर्थ में हमारा मुंबई लोकेट हो रहा था और 30 डिग्री नॉर्थ में हमारा दिल्ली लोकेट हो रहा था। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इससे हमारा इक्वेटर से हर एक प्लेस का जो डिस्टेंस होता है वो भी हमें क्लियर होता है। तो ये हमारा लैटिट्यूड्स का यूज होता है। बट जो हमारी लॉन्जिट्यूड्स होती हैं, इससे हमें अपने पहले हम इसकी टाइम को क्लियर करेंगे कि किस तरह से जो लॉन्जिट्यूड्स हैं वो टाइम पर इफेक्ट करते हैं, किस तरह से लॉन्जिट्यूड्स की वजह से हमारा जो टाइम है वो जो है चेंज होता रहता है और किस तरीके से चेंज होता है। तो फर्स्ट थिंग इज, जिस तरीके से ये हमारे लॉन्जिट्यूड्स हैं, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद हमारा ये 1 लॉन्जिट्यूड्स आ जाता है जो 1 डिग्री पे है। ये भी मैंने क्लियर किया कि 2 लॉन्जिट्यूड्स के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। इन 1 डिग्री को हम लोग 1101 किलोमीटर
के डिस्टेंस के साथ में कवर करते हैं। ये क्लियर था? कल मैंने आप लोगों को इसको जो है वो जो अर्थ की सर्कमफ्रेंसेस थी उसके साथ मैंने क्लियर किया था कि किस तरह से अर्थ की सर्कमफ्रेंसेस 40,077 किलोमीटर है, तो किस तरीके से हम लोग उसकी जो है निकालते हैं, तो उसमें 111 किलोमीटर निकलता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में, तो ये दो जो लॉन्जिट्यूड्स हैं। अब देखिए जैसे हमारी ये लॉन्जिट्यूड है, जो भी हमारी फर्दर ये जैसे मान लीजिए हमारी लॉन्जिट्यूड्स है, तो अगर किसी एक भी इस लॉन्जिट्यूड पे अगर किसी एक प्लेस पे 12 नून हो रहा है, अगर 12 बजा है दोपहर का, तो जितनी भी इन पूरी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स में जितने भी प्लेसेस लोकेट होंगे, जितने भी प्लेसेस यहाँ पर हमको दिखेंगे, उन सब में जो टाइमिंग होगा वो 12 नून ही होगा। इज इट क्लियर? लॉन्जिट्यूड्स किसी एक, जैसे मान लीजिए यहाँ, और अगर ये वाला लॉन्जिट्यूड्स है या ये वाला है या इसके बाद नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड्स आ रहे हैं, तो अगर इस पे 12 नून है तो इसमें पूरी जितनी भी प्लेसेस लॉन्जिट्यूड को कवर कर रही है, इस वाले को 1 एंगल को या 2 एंगल को, अगर 2 पे 12 नून है तो पूरे सब पे 12 नून होगा। अगर यहाँ पर 12:05 हो रहे हैं, तो फिर ये पूरी सारे लॉन्जिट्यूड्स में जितने भी हमारी प्लेसेस लोकेट होंगी वो सब वहां पर उसमें 12:05 ही होगा। जैसे कि इफ इट इज 12 नून एट अ गिवन लॉन्जिट्यूड, अगर किसी भी गिवन लॉन्जिट्यूड्स में 12 नून हो रहा है, इट मस्ट बी 12 नून एट ऑल प्लेसेस, तो वो 12 जो बजा होगा वो वहां उस लॉन्जिट्यूड्स की जितनी भी प्लेसेस कवर होंगी उन सब में 12 ही बजा होगा। द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, अर्थ मेक कंप्लीट सर्कल ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। ये आपको सब पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और उसको कितनी देर लगती है? 1 आवर लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, उसमें हम इसको और क्लियर पढ़ेंगे, बट यहाँ इतना समझने की जरूरत है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट कवर इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, मतलब कि 24 आवर्स में वो अपना एक रोटेशन जो होती है उसको कंप्लीट करती है। ये क्लियर है? अब हम यहाँ पर इसी से ही हम आपको कवर करके बताएंगे। हमने आपको बताया कि 360 लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, तो हमारे टोटल कितने लॉन्जिट्यूड्स हो गए? 360। अब इसका मतलब जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन कर रही है, तो वो 360 लॉन्जिट्यूड्स को कवर कर रही है, क्योंकि 360 लॉन्जिट्यूड्स पूरे ही उसके साथ में एक्सिस के ऊपर जो है वो राउंड करते हैं, तो वो 360 लॉन्जिट्यूड्स को कवर कर रही है। ये क्लियर हो गया? तो जब 360 लॉन्जिट्यूड, इसका मतलब हुआ कि 24 आवर्स में 360 लॉन्जिट्यूड्स को उसने कवर किया। अब हम निकालेंगे कि 1 आवर में कितना किया। अगर हम 1 आवर का निकालते हैं तो 1 आवर में 360 को हम डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो इसका मतलब 15, हमारा आंसर आ रहा है 15। तो इसका मतलब कि 1 घंटे में जो अर्थ होती है वो 15 लॉन्जिट्यूड्स को कवर करती है। क्लियर हो गया? अब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये सबको पता है। अब हम निकालेंगे कि जब 60 मिनट में 15 लॉन्जिट्यूड्स को हमारी अर्थ कवर कर रही है। क्लियर हो रहा है? 160 मिनट में 15 लॉन्जिट्यूड्स कवर कर रही है, तो हमने 1 मिनट का निकाला, तो 1 मिनट के लिए हमने 60 को डिवाइड किया 15 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 4 मिनट्स। एज अ रिजल्ट एक लॉन्जिट्यूड को कवर करने में अर्थ को 4 मिनट्स लगते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरीके से एक लॉन्जिट्यूड से दूसरी लॉन्जिट्यूड में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 4 मिनट्स का होता है। जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये 4 मिनट इंक्रीज होते जाते हैं, और जब हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये 4 मिनट्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये निकाल लिया कि 1 लॉन्जिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट। ये क्लियर है? ये हमने यहां से निकाला कि किस तरीके से 24 आवर्स में 360 लॉन्जिट्यूड को अर्थ कवर करती है, तो 1 आवर में 360 को हमने 24 से डिवाइड किया तो 15 लॉन्जिट्यूड्स निकला, तो मतलब 1 घंटे में 15 लॉन्जिट्यूड्स को अर्थ हमारी कवर करती है। इसके बाद तो अब 1 घंटे में 15 करती है का मतलब 60 मिनट्स में, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में कवर करती है 15 लॉन्जिट्यूड्स, तो
तो 1 मिनट में कवर करती है 60 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4 मिनट्स में। इसका मतलब 1 लॉन्जिट्यूड्स को वो 4 मिनट में कवर करती है। वी नो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फर्स्ट सन राइजेज इन द ईस्ट, और सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है। तो जितनी भी ईस्ट की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो टाइम है वो बढ़ता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे 12 नून है, यहाँ पे इस वाले लॉन्जिट्यूड में हमारे 12 बजा हुआ है, 12 बजा हुआ है। जैसे ही हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा ईस्ट पोर्शन है, जैसे ही हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो जब यहाँ पर 12 बजा होगा तो इस लॉन्जिट्यूड पे जितनी भी प्लेसेस होंगी वहां पे 12:04 होगा, मतलब 12:04 होंगे। इज इट क्लियर? अब जब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे लॉन्जिट्यूड में तो वहां पर 12:08 होगा, मतलब कि 0 लॉन्जिट्यूड पे 12 नून होगा। 1 डिग्री ईस्ट, जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे लॉन्जिट्यूड पे 12:04 होंगे। जब हम सेकेंड ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे सेकेंड डिग्री पे तो वहां पे 12:08 होगा। ऐसे जब हम थर्ड पे आएंगे तो 12:12 होंगे। और अब ये मैंने आपको बताया यहाँ पर 12 बजा होगा, फिर यहाँ 12:04 होगा, फिर यहाँ पर 12:08 होगा, फिर ऐसे बढ़ेंगे तो 12:12 होगा। लेकिन जो ये है यहाँ पर पूरे में ही 12:04 होगा, यहाँ पूरे में ही 12 o'clock और 8 मिनट होगा, यहाँ पूरे में ही 12 o'clock और 12 मिनट्स होंगे। मतलब ये जो प्लेसेस होंगी या एक जैसा होगा, बट हमारा लॉन्जिट्यूड्स जब एक चेंज होंगे 1 जो है वो एंगल के डिस्टेंस पे जब हमारे लॉन्जिट्यूड्स चेंज होंगे तो 4 मिनट्स उसमें वेस्ट की तरफ डिक्रीज हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम ईस्ट की तरफ इंक्रीज हो जाएंगे और जैसे ही हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे वेस्ट की तरफ तब हमारे ये डिक्रीज होंगे। जैसे कि यहाँ अगर 12 बजा है तो जब हम इस वाले लॉन्जिट्यूड्स पे आएंगे तो हमारा बजा होगा 11:56, यहाँ पर 11:56 होगा। इसको मैं भी हम और भी क्लियर करते हैं। फर्स्टली मैं इसको रब कर दूं। These all are understanding pilots. Good morning everyone. So welcome to the class. Today I am going to explain about protective tissues. As you all know that nowadays I am discussing about lesson 2, which is the tissues. So let's discuss about protective tissues. As you know, the word protective means protection. So these tissues provide protection to the internal tissues of the plant. These are present in outer peripheral regions of roots, stem, leaves and flowers, and provide protection to underlying tissues. There are two types of protective tissues, epidermis and cork, and today we will discuss about it. So students, जो protective tissues होते हैं, नेम से हमें बात समझ आ रही है कि protective tissues है, that means ये प्लांट के टिश्यूज जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी प्रेजेंस क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्रोटेक्शन अंदर रह के नहीं हो सकती, इनको आउटर रीजन में रहना पड़ता है। तो ये आउटर पेरिफेरल रीजन जो होते हैं प्लांट के पार्ट्स के, फॉर एग्जांपल रूट्स के आउटर रीजन में, स्टेम के आउटर रीजन में, लीव्स के आउटर रीजन में एंड फ्लावर्स के आउटर रीजन में। इसके अलावा ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जितने भी अंडरलाइंग टिश्यूज है इनको। टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नंबर फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड नंबर सेकंड इज cork. So let's discuss about epidermis. Epidermis is the outermost layer of plant organs and it is single cell thick. It forms continuous layer of the aerial parts of the plant. It provides protection to internal tissues. In root, there is present a root hair which helps to absorb water. In stem, it is green and protective. In older stem, it becomes rupture because of thickness of the stem. And in dry climate, this epidermis is thick to prevent water loss. And in aerial parts of the plant, epidermis secretes shiny waxy layer which is also water resistant and provide mechanical injury and also invasion by fungal parasites. So students, जो epidermis होती है ये outermost layer है प्लांट की, और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो सिर्फ सिंगल सेल से फॉर्म
सिंगल सेल थिक। इसका जो फॉर्मेशन होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं पे भी बीच में कोई गैप्स नहीं होते, कोई होल्स या पोर्स नहीं होते। जितने भी एरियल पार्ट्स है प्लांट के उनमें ये कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट होती है। जितने भी इंटरनल टिश्यूज उनको प्रोटेक्शन देती है एज आई टोल्ड यू। बट अगर हम रूट की बात करें तो रूट में एपिडर्मिस में रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं। रूट में छोटे छोटे से हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन क्यों होता है? जब सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट को करना होता है तो उसके लिए रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो इसलिए एपिडर्मिस ऑफ रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल। अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम की एपिडर्मिस कैसी होती है? तो स्टेम में एपिडर्मिस ग्रीन कलर की होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। दैट मींस स्टेम के सारे इंटरनल टिश्यूज को वो प्रोटेक्ट करती है। अगर हम ओल्डर स्टेम्स की बात करें, वो स्टेम्स की जो कुछ पुरानी हो चुकी है उनमें एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, दैट मींस टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि जब स्टेम ओल्ड होती है तो उसकी थिकनेस उसके साथ बढ़ती चली जाती है, एंड जब स्टेम थिक हो जाती है तो वहां पे एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है उसकी थिकनेस की वजह से। अगर हम उन प्लांट्स की बात करें जो ड्राई क्लाइमेट में होते हैं, दैट मींस जहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स, वहां पे क्या होता है? ये बहुत थिक होती है। क्यों? वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा कम है, और जो वाटर प्रेजेंट है अगर वो भी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो प्लांट में वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। इस वजह से वहां पे ये एपिडर्मिस जो होती है ये थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, ताकि वहां से वाटर का लॉस जो है वो ना हो पाए। एंड लास्ट है एरियल पार्ट्स है प्लांट के, उसमें एपिडर्मिस एक स्पेशल वर्क करती है। वो क्या करती है? एक सिक्रीशन करती है। वो सिक्रीशन होता है शाइनी एंड वैक्सी, थोड़ा शाइन करता है, वैक्सी नेचर होता है, एंड बिकॉज ये वैक्सी होता है इस वजह से हेल्प करता है वाटर रेजिस्टेंस में, दैट मीन्स वाटर के लॉस को कंट्रोल करने में। एंड वाटर लॉस के साथ साथ जितनी प्लांट में मैकेनिकल इंजरी हो सकती है उसको भी प्रिवेंट करता है, एंड ऑल्सो जो फंगल पैरासाइट्स प्लांट पे इन्वेड करते हैं उनको भी रोकता है। फंगस कई बार प्लांट को डिस्ट्रॉय करती है, तो एपिडर्मिस उससे भी जो है एरियल पार्ट्स को प्लांट के प्रोटेक्ट करती है। लीव्स में एपिडर्मिस क्या करते हैं? लीव्स perforated by small apertures. For that perforation, stomata is present, which is guarded by two guard cells, and guard cells are surrounded by accessory cells. That means कि अभी मैंने आपको बताया था कि जितने एरियल पार्ट्स है प्लांट के उसमें एपिडर्मिस कैसे होती है? एकदम कंटिन्यूअस होती है। बट अगर हम लीव्स की बात करें, इन केस ऑफ लीव्स, यहाँ पे एपिडर्मिस कंटिन्यूअस नहीं होती है, यहाँ पे परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मीनिंग मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही चीज लीव्स में होती है कि लीव्स में एपिडर्मिस पे जगह जगह पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। These pores जो पोर्स प्रेजेंट है इनको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। एंड ये स्टोमेटा जो है गार्ड करते हैं टू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का वर्क होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा को गार्ड करने में हेल्प करते हैं। एंड दीज गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय एक्सेसरी सेल्स। उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं उनको एक्सेसरी सेल्स बोला जाता है। तो वेरी सिंपल, लीव्स में कंटिन्यूअस नहीं है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड मींस जगह जगह पे पोर्स प्रेजेंट है। इन स्मॉल पोर्स को या स्मॉल अपर्चर्स को स्टोमेटा बोला जाता है। इस स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स को सराउंडिंग सेल जितने होते हैं उनको एक्सेसरी सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा? लीव्स में लेयर जो है कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? व्हाई दिस परफोरेशन इज प्रेजेंट? सो स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड आल्सो इन ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट्स, स्टोमेटा इसलिए प्रेजेंट होता है कि एज यू ऑल नो लीव्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोसेस होता है वो लीव्स में ही होता है। इसके लिए लीव्स को गैसेस का एक्सचेंज करना होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको भी सिक्रीट आउट करना होता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। जो गैस लीव्स को चाहिए दैट इज CO2, इसकी एंट्री स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। एंड एज एन एंड प्रोडक्ट जो गैस निकलती है O2, इसका जो एग्जिट होता है ये भी स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। जब CO2 रिक्वायरमेंट है तो वो स्टोमेटा से एंटर करता है। जब फोटोसिंथेसिस का फुल प्रोसेस हो जाता है, रिमेनिंग O2 बचता है, तो ये भी स्टोमेटा से ही एग्जिट करता है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, CO2 की एंट्री हो रही है, O2 की एग्जिट हो रही है, दिस प्रोसेस इज डन बाय द हेल्प
the water was conducted till leaves. अब leaves में जब water पहुंच जाता है वहाँ पे photosynthesis का पूरा process होता है, उसके बाद extra water बच जाता है. वो extra water जो है leaves के इन्हीं small pores से in the form of water vapor बाहर चला जाता है. इस water vapor के excretion के process को transpiration बोला जाता है. That means स्टोमेटा जो pore है बहुत ही minute pore है, इससे solid and liquid का pass होना is not possible. Only gaseous form की चीजें इससे pass हो रही है. That is CO2 pass हो रहा है, O2 pass हो रहा है and water vapor. ये तीनों ही gaseous form की चीजें जो स्टोमेटा के थ्रू पास हो रही है. इसका फंक्शन यही है कि गैसेस के एक्सचेंज में CO2 एंड O2 के एक्सचेंज में एंड ट्रांसपिरेशन में दैट मींस एक्सेस ऑफ वाटर वेपर जो है वो प्लांट से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट थिंग एक और जो इम्पोर्टेंट है कि एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल. एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर भी होती है एंड दिस लेयर इज नोन एज क्यूटिकल. ये एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करती है बाकी सारे मैकेनिकल इंजरीज से या जो भी बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर्स एपिडर्मिस को हार्म कर सकते हैं, उन सब से ये क्यूटिकल जो है इसको प्रोटेक्ट करती है. तो क्यूटिकल भी इसके ऊपर प्रेजेंट होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड प्रोटेक्टिव टिश्यू व्हिच इज कॉर्क. कॉर्क इज आल्सो काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज. ये भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इट इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स इन ओल्डर स्टेम. अभी मैंने आपको बताया कि ओल्डर स्टेम्स में एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है. अब अगर एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है तो क्या वहां पे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है? वहां पे कोई भी ऑर्गन प्रोटेक्शन नहीं करेगा. उस जगह पे प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है कॉर्क. कॉर्क का फॉर्मेशन होता है लेटरल मेरिस्टेम्स. आई टोल्ड यू अबाउट मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. तो जो लेटरल मेरिस्टेम है उसी से ही जो है ओल्डर स्टेम्स में एक्टिविटी से और कैमियो फॉर्म हो जाती है. ये कॉर्क की अगर हम बात करें कैसी होती है, बहुत लाइट होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है. कंप्रेसिबल और लाइट होने के साथ साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट डज नॉट कैच फायर. फायर जो है इस कॉर्क को अफेक्ट नहीं करती, इजिली से फायर कैच नहीं होती. दैट इज व्हाई इट इज वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. And in spite of all this, there is a chemical present in cork which is known as suberin. This suberin is impermeable to gases and water. एक chemical भी present होता है जिसका नाम है suberin. ये suberin help करता है किस बात के लिए? लीव से अभी तक हमने पढ़ा exchange of gases and transpiration हो रहा था, गैस और वाटर दोनों का exchange हो रहा था. बट ये केस जो है older stems में नहीं होता. ग्रीन स्टेम्स में भी थोड़े अमाउंट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन हो सकता है, वहां भी स्टोमेटा प्रेजेंट है. बट जो स्टेम्स ओल्ड हो जाती है जिनमें एपिडर्मिस की जगह कॉर्क प्रेजेंट है, वहां पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता. वहां पे ना गैसेस की एंट्री एग्जिट होती है, ना वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज होता है. सो दैट इज व्हाई ये इम्परमेबल होती है इन सारी चीजों के. दैट मींस इनकी एंट्री और एग्जिट इससे नहीं हो पाती. नेक्स्ट है जो एपिडर्मिस का फंक्शन है वही इसमें भी प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज. जितने भी उस ओल्डर स्टेम के इंटरनली टिश्यूज प्रेजेंट है उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम भी इस कॉर्क का ही होता है. नेक्स्ट है यूज फॉर इंसुलेशन. इंसुलेशन के लिए हेल्प करती है. व्हाट इज इंसुलेशन? इंसुलेशन मींस ना एक्सेस हीट गेन हो और ना एक्सेस हीट लॉस हो. दैट मींस हीट का भी एक इक्वल टेम्परेचर बना रहे जितना रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए, ना एक्सेस में हो जाए और ना वहाँ पे उसकी शॉर्टेज हो जाए. इसमें भी हेल्प करती है. एज एन इंसुलेटर भी कॉर्क जो है प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट थिंग इट इज वाटर प्रूफ. ना वाटर की एंट्री होती है ना एग्जिट होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है. एंड लास्ट थिंग इट इज शॉक एब्जॉर्बर. शॉक जो भी लग सकते हैं प्लांट्स को उससे भी जो है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है. तो दिस इज अबाउट कॉर्क एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. इट इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. जो भी लेटरल मेरिस्टेम्स होती है प्लांट में उसकी ओल्डर स्टेम्स में जो है ये फॉर्म हो जाती है. बहुत लाइट होती है, वेट बहुत ज्यादा नहीं होता. इसका हाईली कंप्रेसिबल होती है. दैट मींस इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें फायर भी इजीली कैच नहीं होती है. एक केमिकल प्रेजेंट होता है सुबेरिन जो हेल्प करता है इसको इम्परमेबल बनाता है टू गैसेस एंड वाटर. दैट मींस चाहे गैस की बात हो चाहे वाटर की बात हो, किसी का भी एक्सचेंज प्लांट में इसके हेल्प से नहीं हो सकता. ये सारी एक्टिविटीज जो न्यू स्टेम्स होती है उसमें होती है या फिर लीव्स के बारे में मैंने बताया इसमें एक्टिविटीज होती है. बट इन केस ऑफ ओल्डर स्टेम्स कोई भी एक्सचेंज वहां पे नहीं होता.
जितने भी अंडरलाइन टिश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करती है, इंसुलेशन में हीट को गेन और लॉस को रोकने में उसमें हेल्प करती है, वाटर प्रूफ इन नेचर होती है एंड ऑल्सो शॉक को एब्जॉर्ब करती है, दैट मीन्स प्लांट को कोई भी एक्सटर्नल चीजों से कोई फर्क ना पड़े, इसमें भी प्लांट की हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।